Hi friends, welcome back. भैया on camera. CGI Chandrachud angry at lawyer. Call security during Supreme Court NEET hearing. ओए होए पेपर लीक. देखते हैं. मतलब वो उसको बोला लॉयर को कि भैया यहाँ से वार्निंग दी, उसके बाद बोल सिक्योरिटी को बुला के शायद निकाल भी दिया होगा. ऐसा क्या हुआ देखते हैं. और ये नीट की हियरिंग के टाइम हुआ है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. You're not an American. I am not American. No, I'm appearing. I'm not interested in Please sit down. I'm warning you. Mr. what Matthews, you say. I'll have to have you removed. Look at it this way. Both ways. Let's put it 1 second. Let's put it both ways. We can't, today you are right, absolutely, that we can't say that the leak, we can't enter a judicial finding that the leak is confined only to Hazaribagh and Patna. Correct. For the reason that the investigation is ongoing. That's right. Even CBI can't tell us that. Today, as of now, it is confined to Hazaribagh and Patna. CBI's investigation in the next 15 days or 10 days might reveal a different, an evolving picture. 10 more locations. So, we also, on the one hand, can't say that the leak is confined only to Hazaribagh and Patna. Equally, we can't today say with any degree of even prima facie authenticity or substance that the leak has gone beyond Hazaribagh and Patna in such a widespread or a systemic manner as to completely affect the sanctity of the entirety of the exam. That also we cannot say. Therefore, I asked you that's why we want your assistance. Can the court or would the court be justified in a situation like the one present to say that not on the basis of material which we have today, but on the hypothesis that some material in the future may show that the leak had gone beyond Hazaribagh and Patna. Therefore, today we cancel the exam on the basis of a hypothesis. May I answer, my lord? May not happen in future. May I answer? No. When I answer, when I speak, No, Matthew, when I wanted to like, speak, your lordship you can't- prevents me. You please sit down. No, I'm the among the senior, among the lawyers here, I am the senior most. Sorry, you're not an American. I am not American appointed. No, I'm appearing for 10, 16 students. Okay. When I wanted to He speak, is- the Honorable Chief Justice prevent me from speaking. Mr. And Matthews, I have an answer. He is arguing. You will not interrupt him when he's I'm not interrupting, but I have an answer to say. I have an answer to give. You don't answer my question. He's answering the question. Okay, then it's a general question. It's a general question. You, he's on his No, I'm not interested in He is on engagement his with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say, You please sit down. I'll have to have you removed from the court. You please sit down. I'm warning you. I'll have to have you removed from no, the your court. lordship doesn't respect me. One second. I on my own will leave. Mr. Matthews, I'm telling you one very simple Matthews. thing. Mr. Huda is engaged in a... Your lordship, sir, I've tried every best You have to allow me to you have speak and no right, follow my you have no convention. right to intervene. I'm not intervening, I'm leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, I was allowed to speak. Yes, When I was speaking, your lordship was showing the other side, Yes, please. and I have only one word to say, only Yes, one word Mr. leaving, Mr. one word to Matthews, say. please call the security people after me. Have him removed from the court. Please. I only want to answer. You No will, other option you will than not can say be anything. established. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I am in charge of my courtroom. Listening. You just keep quiet now. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. Yeah. I'm leaving, I'm leaving. Leave. Unfair. Yes, Mr. Huda. Wait, please. This is not a judicial. Mr. Matthews, I will now be constrained to issue something which is very unpleasant. Please keep quiet. Sit down here. You want to leave? It's your choice. I'm leaving, I'm leaving. You don't have Listen. to. You do not have to intervene. You don't have to tell me that you are leaving. Yes. No, because I sought permission Everybody to, is- I sought permission to speak. Matthews, you will not interrupt Mr. Huda. I will Good. hear you, but I'll hear you after Mr. Huda is done. I am in charge of procedure in this court, and I've seen the judiciary for the last 24 years. I will not allow any lawyer to dictate the procedure of the court. I've seen the. I will give you a full hearing, but after Mr. All right, all right, done. all right. I have बैठ जा. been in judiciary since 1979. बड़ा ही अजीब बंदा था ये मैथ्यूज. कैसा लॉयर था. यहाँ तो लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करने की कोशिश कर रहा था. प्रोसीजर ही नहीं फॉलो कर रहा. कि भाई वो कह रहे हैं कि मैंने हुडा को जो है उसको बोला, वो बोलने का उसको दिया हुआ है. तुम बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो. तुम क्यों बोल रहे हो.
पहले हुडा को खत्म करने दो, उसके बाद जब वो समय सुन लूंगा फिर तुम बोलना। वही है ना, जैसे कहते हैं भिंडी बाजार की तरह ये एक्ट कर रहा था बंदा। इतनी डिसेंसी उसको नहीं है कि जब उसको बोला गया बोलने को तो वो बोलेगा, जब उसका खत्म हो जाएगा तुम परमिशन लो, जब वो बोलेंगे कि हाँ भैया, जज बोलेगा कि हाँ तुम बोल सकते हो, तब तुम बोलो। वो आर्ग्यू करने के लिए बैठा हुआ है, वो बार बार मतलब इंटरप्ट कर रहा है। वो दूसरा जो हुडा है वो चुपचाप सुन रहा है, उसने कुछ नहीं बोला, वो प्रॉपर वो ठीक था, ये बोलने की कोशिश में लगा होता ये है कि इन पूरे पैनल में से सिर्फ मिस्टर हुडा को बोला गया कि मिस्टर हुडा बोलेंगे। अब ये पैनल है, पहले बोला मिस्टर हुडा बोलिए, मिस्टर हुडा बोलने के बाद जब हो गई बात फिर मिस्टर मैथ्यूज बोलेंगे। अब जब मिस्टर हुडा बोल रहे हैं, बीच में ये बंदा खड़ा होकर बोलने लग गया, इसलिए चंद्रचूड़ ने कहा कि देखो भैया तुम बैठ जाओ मिस्टर हुडा बोल रहे हैं, उनको बात अपनी पूरी करने दो, मैं उनसे पहले बात कर लूं, जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी बारी आएगी। मगर वो बंदा इतना ढीठ था कि एक बार किसी ने बोला ठीक है चलो आप उससे बात कर लो, फिर मेरे से बात कर लेना, मगर वो नहीं, उसको ईगो हर्ट हो गया कहीं पर कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं ये करते रहूँगा, वो करते रहूँगा, जो करना है कर लो, मैं तो जैसे बोल रहा हूँ, मैं तो 1977 से आया हूँ, मैं ये है वो, मैं बोल रहा हूँ ये वो। तो अल्टीमेटली उसने बोला कि इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट मी, मैथ्यूज ने बोला, उसको ईगो लग गई, जबकि सिर्फ यही बोला भैया तू अपनी टर्न में आ, एक बंदा बोल रहा है अपनी टर्न में आ, अपनी टर्न में क्यों नहीं आ रहा, क्यों बीच में बोल रहा है। यही एक चंद्रचूड़ ने बोला, उसे बोला ओके सर मैं वेट करता हूँ उसके बाद, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम ही जज हो, उसका दिमाग चढ़ा हुआ है चंद्रचूड़ जज, यू आर जस्ट प्लीडिंग इन केस ऑफ द जज। अगर तुम इतना अपने रिलेशनशिप यहीं पर ही खराब कर दोगे तो क्या डिसीजन होगा तुम्हारा। एवरी ह्यूमन बीइंग, जबकि होता है कि ह्यूमन बीइंग शुड नॉट गेट बायस, बट चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपको। अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये सब करते हो, इट विल इफेक्ट इन दी, इवेंचुअली इफेक्ट करेगा। ये मैथ्यू को लग रहा है कि मैं बड़ा शाना हूँ, आई हैव मोर नॉलेज देन बाकी जो बैठे हुए हैं या हुडा, मैं आगे जवाब देता हूँ। उसने कहा मैंने तुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने हुडा से पूछा, लेट हिम आंसर, लेट हिम टेल मी। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो ये मैथ्यूज पहले बोल सकता था, हुडा आराम से बैठ सकता था, मगर जैसे लग रहा है इनके पैनल में हुडा जो है सीनियरिटी होगी या कुछ होगी, जो भी हुडे को अपॉइंट किया होगा, हुडा पहले बोलेगा। अब इतना ही तकलीफ थी तो तू पहले सभी लोगों से बात कर लेता, आपस में इनकी प्रॉब्लम चल रही है। वरना ये बोल सकता था हुडा को मेरे को पहले जाने दो फिर मैं जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ होगा डिस्कस। वहां पे ये हुआ होगा कि हुडा पहले जाएगा, मगर उसने बोला मैं बोल दूंगा, तो मतलब आपस में देयर इज सम प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से कोर्ट केस हियरिंग ये चल रही है कि जो नीट का एग्जाम है इसको कैंसिल कर दो, ऑन द बेसिस कि अभी एक जगह पर जो है वो पता चला है कि एक जगह पे लीक हुआ है। पर ये जो वकील, ये जो लॉयर्स खड़े हैं, ये क्या दे रहे हैं, इनका कहने का ये है कि भैया एक जगह नहीं बहुत जगहों पे लीक हुआ हो सकता है या हुआ होगा, इसलिए नीट के पेपर। तो वो ये जज ये कह रहे हैं कि भैया ऑन व्हाट बेसिस तुम कह रहे हो, अभी हमें से पता है कि ये फलानी जगह पे हुआ है, अब तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि बाकी जगह पे, तुम उसके हिसाब से नहीं, वो हाइपोथेसिस या वो अपना खाली पुलाव जो अजम्पशंस कर रहे हो उसके हिसाब से तुम ये नहीं कह सकते कि पूरी नीट को ही कैंसिल कर दो। तो वो चल रहा था और इसमें इसको बड़ी हुई, ये खड़ा होके बोलता है मैं 30 मार खान हूं, मैं बोलूंगा, मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा कोर्ट रूम के, मेरा मन किया बोलने का, मैं खड़े होके बोलूंगा, सब कुछ इंटरप्ट करूंगा। और उसको सुनाई दिया, उसको वार्निंग दी गई कि तेरे को या तो हम निकाल देंगे, मैं तेरे को निकाल दूंगा यहाँ से, या तो तू चुपचाप बैठ जा, अपनी टर्न की वेट कर। वो फिर भी नहीं समझ रहा, कहता मैं चला जाता हूं, तो जा ही नहीं रहा, चला जा तो करके भी नहीं जा रहा, ऐसा आदमी था। और इसको देखे तो पार्लियामेंट याद आ रहा है, जैसे ये जज है ना, वैसे पार्लियामेंट में जो बैठते हैं ना, वो उनको भी यही करना चाहिए, एक बार ही बोलूंगा सिक्योरिटी आगे तुमको निकाल देगी, यही करना चाहिए हर जगह। जब तुम्हारी टर्न हो तब बोलो, जब दूसरा बोल रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं, अच्छा एग्जांपल था जिसमें नजर आ रहा है कि ईगोज क्लैश हो गए और मिस्टर मैथ्यूज को शांति से बैठ जाना चाहिए। ये मैथ्यू होगा कोई टॉप का लॉयर, बड़ा पैसा पूसा लेता होगा अपने हर केस का, उसका दिमाग चढ़ा होगा, मैं पता नहीं क्या हूँ, सोच रहा है कि जज के सामने बोलूंगा। ऐसे नहीं पता कि भैया जज के सामने बोलेगा, तेरी डिग्री और तेरे को कोर्ट में आने का वो तेरे ऊपर कुछ वो कर दे कि तू आ ही ना पाए कोर्ट, फिर क्या होगा तेरा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।